Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 5, chapter 5, and chapter name is Objects in MS Word, part 4. Today in this class, we will discuss about some objects of MS Word and how we can insert that object in MS Word file. In our last class, we have discussed about word art. That what is word art? Word art is a some type of fonts which can create a title more eye catchy and attractive. And we have also discussed about that how we can insert a picture in a MS Word file. So in today's class we are going to discuss about that how we can insert symbols in MS Word file and how we can insert some equations in our MS Word file. So for your better understanding, I'm going to open Word document. So by the help of this Word document, we will better understand the topic. Yeah, so this is the file in which we have done our work in our last class. Now today, our first topic is insert a symbol. That how you can insert the symbols in your MS Word file. So there are so many symbols which is not available on our keyboard. कीबोर्ड पे बहुत सारे symbols available नहीं होते हैं. So for using that symbols we have to use some symbols which is not available on the keyboard. और अगर हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हमें उनको फिर import करना पड़ता है. ठीक है. So to insert some symbols, click on this insert tab. आपको इस insert tab पे क्लिक करना है and then from here click on this symbol. जब आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल रहे हैं like this symbol. It is not available on your keyboard. ये वाला सिंबल हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होता है. इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे तुम्हें ये प्रॉपर्ली दिखाई देगा. यस, दिस सिंबल. तो ये जो सिंबल है ये हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होता है. Some more symbols are there like this beta sign and this copyright sign and there are so many signs like this sign. So ये जो सारे signs हैं ये हमारे कीबोर्ड पे easily available नहीं होते हैं. ठीक है. और अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में इनकी ज़रूरत है तो उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा सिंबल पे और सिंबल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमें ये जो सिंबल्स हैं ये इंसर्ट करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी फाइल में. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन दिस मोर सिंबल. आप इस मोर सिंबल पे क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने और भी बहुत सारे सिंबल्स आ जाएंगे जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर सम मोर सिंबल्स. अगर इनमें से कोई सिंबल आपको यूज करना हो अपने डॉक्यूमेंट में तो आप इन सिंबल्स को भी क्लिक करके यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस. क्लिक ऑन सिंबल देन क्लिक ऑन इंसर्ट. क्लिक ऑन सिंबल देन क्लिक ऑन इंसर्ट. ओके. एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सिंबल्स. आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के सिंबल्स आपको मिल जाएंगे. These all are the different types of symbols. आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे आपको अलग अलग सिंबल्स, वो सारे सिंबल्स जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. तो आप यहाँ से किसी भी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एंड यू कैन यूज दैट सिंबल इन योर डॉक्यूमेंट. आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी सिंबल इंसर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सिंबल्स विच यू कैन यूज इन योर डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो दीज ऑल आर द सिंबल्स जो कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए. नाउ क्लोज दिस. हमने इसको क्लोज कर दिया. तो देखिए ये जो सारे सिंबल्स हैं ये सब सिंबल्स हम अपने डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पे यूज किया है इनको. ठीक है.
और ये जो सब सिंबल्स हैं ये आपके कीबोर्ड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं. So again I'm telling you, to insert the symbol, click on this insert tab, then click on symbol. If you want to symbol from these, then you can use, and if you want to use more symbols, then click on these more symbols, and from more symbols you can use any type of symbol in your Word document. Okay, now our next topic is how you can insert equation in your MS Word document. Like you want to insert any type of equation, then again you have to click on this insert tab and then click on this equation. Okay, आप इस इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करके उसके बाद आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे. इक्वेशन पे आपको बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी. ठीक है, ये इनमें से कोई भी इक्वेशन अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में लिखनी है तो आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन पे क्लिक कर दें. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो इक्वेशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में इस तरीके से आपको मिल जाएगी लिखी हुई. अब अगर आपको यहाँ पे ये साइन नहीं यूज करना है, कोई और साइन यूज करना है, तो आप इसको यहाँ से हटा के और जो भी आपका साइन है वो साइन आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, देयर आर सम मोर सिंबल्स फ्रॉम हेयर. अगर आपको ये जो कैलकुलेशन है इसको आपको नहीं लेना है, लाइक आपका जो टर्म्स हैं वो कुछ और हैं, तो आप यहाँ पे इनको हटा के दूसरे डिजिट्स दे सकते हैं. मतलब आपको इक्वेशन जो है वो इक्वेशन में से लेनी है और उसके बाद आपको उस इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, और इसके अलावा आपने लाइक जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया और आपने इक्वेशन पे क्लिक कर दिया, तो इक्वेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, ये सब इक्वेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. लाइक आपको कोई मैट्रिक्स बनाना है तो आपने मैट्रिक्स पे क्लिक किया. अब मैट्रिक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने और भी कई तरीके के जो भी मैट्रिक्स होते हैं वो सबके जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. लाइक आपको ये वाला मैट्रिक यूज करना है, आपने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये जो मैट्रिक है ये यहाँ पे बना हुआ आ गया है. नाउ इफ यू वांट देन यू कैन चेंज इट्स डिजिट्स. ठीक है, आप इसके डिजिट्स जो है वो अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं. आप अगर सिंबल्स चाहें तो आप सिंबल्स यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं. आप अगर कोई दूसरी इक्वेशन लेना चाहें तो वो आप यहाँ से दूसरी इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. इसके अलावा यहाँ पे होता है इंक इक्वेशन. वन मोर ऑप्शन इज देयर, इंक इक्वेशन. आपको अगर कोई इक्वेशन आपको इसमें नहीं मिल रही है और वो इक्वेशन भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में यूज करनी है तो आप इंक इक्वेशन पे क्लिक करके उस इक्वेशन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं. लाइक मैंने लिखा 1/2. ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई लग रहा है कि लाइक कुछ रॉन्ग है तो आप उसको वहां से हटा दीजिए और आप अगेन वहां पे लिख सकते हैं. लाइक यहाँ पे Z लिखा हुआ आ रहा था तो हमने इसको 2 कर दिया एंड देन क्लिक ऑन दिस इंसर्ट. तो ये वो जो इक्वेशन है वो आपकी उस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो इंसर्ट हो जाएगी. जहां पे भी आपके माउस का कर्सर होगा वो उसी पर्टिकुलर जगह पे. अभी हमारे माउस का कर्सर यहाँ था तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ गई. अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं देन आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं और कहीं और जहां भी आपके माउस का क्लिक होगा वहां पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लाइक क्लिक ऑन दिस इंसर्ट, then click on this equation, and from equation you can use this ink equation, and in ink equation you can write any type of equation from here.
So this is the method that from by using this you can insert any type of equation in your MS Word document. I hope you understand this topic in a better way. By clicking on this insert tab, you can insert any type of equation in your document and any type of symbol in your document. So these two topics we have discussed in today's class. First is inserting symbols, that how you can insert symbols which are not available on the keyboard. You can insert this symbol by using MS Word document, and how you can insert some equations. There are some equations which we cannot insert directly from the keyboard, so we have to use these tools for using that equations. Okay, I hope you understood both of the topics. I will share your homework in your class group, so do complete your homework in Interleaf notebook, and do complete your homework on time and submit your notebooks in the school for checking. That's all for today's class. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.